Hello guys, welcome back to my channel Code to Build and in the second video of this Angular series. As you know, in our previous video we had discussed about the basics of Angular. The link of that video is in the description. If anyone wants to visit that, then feel free to do that. Now in this video we will discuss about Angular CLI. Angular CLI is very important topic for any Angular developer. So please stay till the end of this video. We will discuss points like what is Angular CLI, why do we need it, and how to install Angular CLI. And after that we will see features of Angular CLI. So what is Angular CLI? Let's discuss. Angular CLI is a command line interface that is provided by Angular team. Here CLI word implies to command line interface, right? So Angular CLI is a command line interface and it is provided by Angular team. Why do we need Angular CLI? Let's suppose that we want to develop a project on Angular. So what will be the first step? First step is to create a Angular project. After that we want to add features in this Angular project. So now we need to scale that project, right? After the scalability, the final thing which come in the picture is maintainability. Right, so it is the complete process of any project development. So throughout this process Angular CLI helps us. Now the Angular CLI speed up the development process of any Angular project. We will see it how it helps us. Now how to install Angular CLI? If we are on Windows machine, then we can install it using npm. The command is this: npm install -g @Angular CLI. If we are on Mac or Linux machine, then we need to add sudo in the beginning of that command. The command is same which is on the Windows. The same command will be used on Linux and Mac. Just we need to add sudo to give permissions to the terminal, right? So let's install CLI. As in our previous video, we had discussed that we need Node and npm to work on the Angular, right? So let's see how to install Angular CLI. Let's open terminal. So here in my machine Node and npm are already installed. उनके वर्जन चेक कर लेते हैं. Node -b, it is showing me version 14.16.0. it is the version of Node in my machine. Now let's see of version of npm. it is 7.8.0. right? Now let's install Angular CLI. तो Angular CLI का जो एग्जीक्यूटेबल होता है वो ng होता है. Angular CLI की जो कमांड्स हैं उनको ng के साथ एग्जीक्यूट करना होता है. लेट मी फर्स्ट ट्राई इट कि मेरे सिस्टम में Angular CLI इंस्टॉल है या नहीं, वो कैसे पता कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप ng इन द टर्मिनल एंड देन हिट एंटर. सो इट इज शोइंग मी कमांड नॉट फाउंड. दैट मीन्स मेरे सिस्टम में Angular CLI इंस्टॉल नहीं है. नाउ लेट्स इंस्टॉल इट यूजिंग दैट कमांड. So I am on Mac machine, that's why I am using sudo. Now type the command npm install -g @Angular CLI. I am downloading the latest version of Angular CLI here, so I do not need to specify any version of Angular CLI. It is asking for password. Give it your admin password. Now it is downloading the CLI. ओके. सो पहले जब हम ng टाइप कर रहे थे, Angular CLI का एग्जीक्यूटेबल ng होता है. हमने ng टाइप किया Angular CLI को डाउनलोड करने से पहले, तो वहाँ पे कमांड नॉट फाउंड लिखा है. अब टाइप करके देखते हैं Angular CLI को इंस्टॉल करने के बाद में. जैसे ही हमने यहाँ पे ng टाइप किया, इसने हमें यहाँ पे अवेलेबल कमांड्स दे दी. Angular CLI की कौन कौन सी अवेलेबल कमांड्स हैं, राइट? वी हैव ऑल दीज कमांड्स. अब ये कमांड्स हमें यूज़ कैसे करनी होती हैं? सबसे पहले एक बेसिक कमांड यूज़ करके देखते हैं कि इसका वर्जन चेक करके देखते हैं. Angular CLI का वर्जन, इसको हम v से भी यूज़ कर सकते हैं. इट विल आउटपुट Angular CLI वर्जन, राइट? सो लेट यूज़ इट. कैसे यूज़ करना है Angular CLI की किसी भी कमांड को? पहले एग्जीक्यूटेबल टाइप करेंगे ng, देन स्पेस, देन कमांड नेम, version. Okay, so it will give us the version of Angular CLI. Angular CLI version is 12.0.5 and it is also giving the version of Node and package manager
as well. Okay, let's do one thing. With the help of Angular CLI, we are going to create a Angular project. Okay, so I am inside my desktop. Okay, so now I am trying to create a project with the help of Angular CLI. तो Angular CLI से Angular का प्रोजेक्ट क्रिएट करने की क्या कमांड होती है? ng new देन प्रोजेक्ट नेम। जैसे कि मान के चलते हैं अभी मेरे प्रोजेक्ट के लिए हमने नेम दे दिया कोड टू बिल्ड P1 प्रोजेक्ट 1। ओके, कुछ भी नेम दे सकते हैं, जस्ट न्यू कमांड के बाद में जो भी XYZ कुछ भी नेम दे सकते हैं। नाउ इट इज आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस लाइक वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग? सो फॉर नाउ टाइप Y इफ यू वांट। नाउ इट इज आस्किंग द फॉर्मेट ऑफ स्टाइल शीट कि हमें CSS चाहिए या फिर SCSS चाहिए। तो फॉर नाउ हमें CSS चाहिए, तो CSS पे ही रहने देते हैं, एंटर। नाउ एंगुलर CLI ने सारी फाइल्स क्रिएट कर दी हमारे फोल्डर के अंदर कोड टू बिल्ड P1 के अंदर, राइट। एंड नाउ इट इज इंस्टॉलिंग ऑल द डिपेंडेंसीज बाय npm। ओके, सो इट इज इंस्टॉलिंग। नाउ हमारा प्रोजेक्ट पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं cd कोड टू बिल्ड -P1। ओके, नाउ मैं इस प्रोजेक्ट में अगर ls करके देखूं तो ये सारी फाइल्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गई। नाउ व्हाट आई वांट टू ओपन दिस प्रोजेक्ट इनटू माय VS कोड। सो लेट मी ओपन इट। तो हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो भी हमने क्रिएट किया था एंगुलर CLI के थ्रू एंगुलर का, वो हमने यहाँ पे अपना ओपन कर लिया VS कोड में, राइट। तो ये सारी फाइल्स बाय डिफॉल्ट एंगुलर CLI के थ्रू ऑटोमेटिक जनरेट हुई हैं, जो कि हमें अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होती हैं। कौन सी फाइल क्या कर रही है, व्हाट इज द यूज ऑफ ईच फाइल हेयर, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल सी हाउ एंगुलर बूटस्ट्रैप इट्स प्रोजेक्ट, राइट। सो फॉर नाउ डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट दिस फाइल स्ट्रक्चर एंड ऑल, जस्ट फोकस ऑन द एंगुलर CLI फॉर नाउ। सो अभी हमने एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस एंगुलर के प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखते हैं। नाउ अब रन करने के लिए कौन सी कमांड होती है? रन करने के लिए कमांड होती है सर्व। ये कैसे पता चला? टाइप ng एंड देन हिट एंटर। यहाँ पे यू कैन सी सर्व बिल्ड्स एंड सर्व्स योर ऐप रीबिल्डिंग ऑन फाइल चेंजेस, राइट। तो अब इस कमांड को कैसे यूज करें? टाइप ng। किसी भी कमांड को यूज करने के पहले ng टाइप करना है, बिकॉज ng implies to Angular CLI। देन टाइप द कमांड नेम। सो आई एम टाइपिंग द कमांड नेम here to serve or to run my project। so ng serve, hit enter। now it will compile all the files of my project and then it will run this project into a particular port of my local machine। so now it is compiling। now you can see that it has been compiled successfully and we can browse our app on localhost 4200 port, right। so let's go to browser and here type localhost 4200। it is showing code to build P1 app is running। it is a default template which Angular CLI provides us। ये default template है जो Angular CLI ने हमें provide किया है। we will modify it later। so for now और commands देखते हैं Angular CLI की। so here it is running this project। now we can close it, we can close our server by pressing Ctrl C। now let's see other commands like this by pressing ng। we have seen the version command, we have seen the new command for creating a project, we have seen the serve command to serve or to run my project। now you can see that there is a command test। test command is to run unit test cases of my project, right। how can I do that? I just need to type ng test and then hit enter। it will run all the test cases। okay, so it is running all the test cases of my app। Angular ऐप को जब मैंने क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ टेस्ट केसेस आए हैं 2-3, वो उनको यहाँ पे रन कर देगा। एंड यू कैन सी 3 specs हैज बीन रन and 0 failures, right। okay, so let me close this test server। now in this way there are few more commands like you can see here we have ng add command। ऐड कमांड को कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई लाइब्रेरी ऐड करनी हो अपने प्रोजेक्ट में, लाइक बूटस्ट्रैप ऐड करना है, एंगुलर मटेरियल ऐड करना है, तो इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? हमारी प्रोसेस को इजी कर देता है। जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है उन कॉन्फ़िगरेशंस को ऑटोमेटिकली एंगुलर प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। सो इन दिस वे वी हैव बिल्ड कमांड, तो ng बिल्ड यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस।
वी हैव दिस डॉक कमांड। ये डॉक कमांड कैसे हेल्प करती है? ओपन्स द ऑफिशियल एंगुलर डॉक्यूमेंटेशन इन ए ब्राउजर एंड सर्च फॉर ए गिवन कीवर्ड। लेट सपोज कि मैं एक कंपोनेंट के लिए सर्च करना चाहता हूँ, तो ng doc एंड देन टाइप कंपोनेंट एंड देन हिट एंटर। सो इसने ब्राउज़र में इसने ओपन कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, एंड कंपोनेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन में वो सारी यहाँ पे दिखा दी। सो नाउ अब तक हम देख चुके हैं कि एंगुलर की ऐप को कैसे क्रिएट करना है। अब ऐप क्रिएट करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि एंगुलर की ऐप को स्केल करने के लिए। तो स्केल करने में एंगुलर CLI कैसे हेल्प करता है? एंगुलर CLI यहाँ पे हमको एक कमांड देता है जनरेट। इस जनरेट कमांड के थ्रू हम मॉड्यूल्स जनरेट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स जनरेट कर सकते हैं, वॉट एवर वी वांट टू जनरेट। ओके, लेट मी शो यू हाउ। सो लेट डू ng जनरेट एंड देन हिट एंटर। ये अभी हमें ऑप्शंस दिखा देगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं। like this available schematics is like app cell, application, class, component, directive, enum, guard, and like this we can create or we can generate anything by using the ng generate command। ठीक है, अब लेट सपोज कि मेरे को एक component जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ng generate then schematic name which is component। schematic name कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये रहे। अब मेरे को जैसे कंपोनेंट जनरेट करना है तो मैंने कंपोनेंट डाल दिया, कंपोनेंट का नेम लेट सपोज कि मेरे को होम कंपोनेंट जनरेट करना है तो मैंने होम डाल दिया। अब ये क्या करेगा, एक कंपोनेंट जनरेट कर देगा मेरे ऐप फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखो इसने ऐप फोल्डर के अंदर एक होम कंपोनेंट जनरेट कर दिया और उसमें बाय डिफॉल्ट 4 फाइल जनरेट हो गई, CSS, HTML, spec and TS। ठीक है, एक बार VS कोड में देख लेते हैं। तो VS कोड में SRC के अंदर ऐप के अंदर ये होम आ गया। इसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 फाइल जनरेट कर दी, एक HTML फाइल है, एक CSS फाइल है, एक TS फाइल है और एक spec TS फाइल है। इन फाइल्स का कहाँ पे कैसे यूज होता है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे धीरे धीरे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो टिल नाउ हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उस प्रोजेक्ट को हमने देख लिया कि कैसे हम उसको स्केल कर सकते हैं, कैसे हम उसमें कंपोनेंट्स जनरेट कर सकते हैं, इसी तरह मॉड्यूल्स भी जनरेट कर सकते हैं। ng जनरेट मॉड्यूल, लेट सपोज आई वांट टू जनरेट ए मॉड्यूल मे बी रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट मॉड्यूल जनरेट कर देगा। ये देखो ये मॉड्यूल जनरेट हो गया एंड यू कैन सी इन द VS कोड देयर इज ए मॉड्यूल रिपोर्ट। इसने एक module.ts फाइल जनरेट कर दी। ठीक है, in this way by using the generate command we can generate anything। just how to, first type executable ng, then type command name, देन टाइप जो भी हमें जनरेट करना है, कंपोनेंट जनरेट करना है तो कंपोनेंट, मॉड्यूल जनरेट करना है तो मॉड्यूल। लेट सपोज कि हमें एक डायरेक्टिव जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टिव एंड देन डायरेक्टिव का नेम। लेट सपोज कि हमें सैम्पल डायरेक्टिव जनरेट करना है तो हमने यहाँ ये डायरेक्टिव जनरेट कर लिया। यहाँ पे देखो VS कोड में जाके डायरेक्टिव जनरेट हो गया एक सैम्पल डायरेक्टिव करके। ये देखो ये रहा सैम्पल डायरेक्टिव। ओके, ये डायरेक्टिव क्या करता है, क्या है, डोंट वरी अबाउट इट। हम अपनी आगे की वीडियोस में सारी चीजें बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया कि एंगुलर की ऐप को स्केल कैसे कर सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेबिलिटी, how we can maintain our Angular app. So for this Angular CLI provides us a feature to update our Angular app. There is a command, if you can see ng, then there is a command to update all the dependencies. Let's suppose ki currently we are on version 12. After 6 months version 13 will come, then I want to update my project to maintain all the dependencies. Then this ng update command will help us. In this way we can also maintain our project. So we have seen all the 3 steps of any project development. First step is create. We have created the project using Angular CLI. Second step is scale. We also have seen that how to scale any Angular project. We have generated component, modules and directives. Now third one is how to maintain. Okay, so for this we have ng update command and ng test to write the unit test cases to maintain our code, right? So these all are commands for Angular CLI. We can use that and ये सारी commands हम आगे अपने आने वाली videos में बहुत अच्छे से use करेंगे. So don't worry about it. And it is all about Angular CLI. Now the next question is it really necessary to download Angular CLI or can we work without Angular CLI? So the answer is we can also work without the Angular CLI. But yes, Angular CLI हमारे प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है डेवलपमेंट के को। अब जैसे कि हम यहाँ पे हमने 2 कमांड के अंदर जस्ट ng new कमांड के थ्रू हमने अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अगर यही हम मैनुअली करते तो बहुत टाइम लगता और इतना एफिशिएंट भी नहीं हो पाता। सो इन दिस वे एंगुलर CLI हेल्प्स अस, राइट। लाइक जैसे कि हमें अपने प्रोजेक्ट को स्केल करना था तो हमने वहाँ पे क्या किया,
कंपोनेंट जनरेट करने थे हमको, तो हमने एंगुलर CLI के थ्रू कंपोनेंट जनरेट कर लिया एक कमांड में, हमारी 4 फाइल जनरेट हो गई। अब उनको सेपरेटली करने बैठते तो उसमें बहुत टाइम लगता, ठीक है। तो इन दिस वे इट हेल्प्स अस. So it is all about Angular CLI. If you have any doubt, then please comment, or you can join us in our Discord server channel. The link of the Discord channel is in our description of this video. So thank you guys for being an amazing audience, and stay tuned with us. Thank you. Bye bye.